آپ دیکھ رہے ہیں SK TV۔ دوستو، یہ کہانی ہے مشرق وسطیٰ کی، جہاں سرحدیں صرف زمین پر نہیں دلوں میں کھینچی جاتی ہیں، جہاں جنگ صرف بندوقوں سے نہیں نظریات سے بھی لڑی جاتی ہے۔ دوستو، سال تھا 2024 اور سیریا میں بشار الاسد کی حکومت قائم تھی۔ 1 اپریل 2024 کو دمشق میں ایک خوفناک حملہ ہوا۔ ایران کے سفارت خانے کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ سفارت خانے کو بھاری نقصان پہنچا اور ایران کے خاص فوجی پاسداران انقلاب IRGC کے 2 اعلیٰ افسر شہید ہو گئے۔ ان میں سب سے اہم شخصیت تھے قدس فورس کے کمانڈر محمد رضا زاہدی۔ ایران نے فوری طور پر اس حملے کا ذمہ دار اسرائیل کو ٹھہرایا اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں تاریخ نے کروٹ لی اور آپریشن ٹرو پرومس 1 کا آغاز ہوا۔ اور دمشق میں ایرانی سفارت خانے کے حملے کے ٹھیک 13 دن بعد 13 اور 14 اپریل 2024 کی درمیانی رات ایران نے ایک بڑا قدم اٹھایا۔ ایران نے اسرائیل پر براہ راست حملہ کیا، جس کا نام رکھا گیا آپریشن ٹرو پرومس 1۔ تقریباً 1700 کلومیٹر دور سے چلنے والے ایرانی میزائل اسرائیلی فضاؤں میں دھاوا بولتے دکھائی دیے۔ آسمان آگ کے گولوں سے بھر گیا۔ یروشلم، تل ابیب اور اسرائیل کے کئی شہروں میں دھماکوں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ اور دوستو، یہ ایک ایسا منظر تھا جو پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بن گیا، اور پوری دنیا اپنی انگلیاں دانتوں میں دباتے ہوئے ایران کے میزائل اسرائیل پر گرتے دیکھ رہی تھی۔ ایران نے واضح پیغام دیا تھا، اگر تم حملہ کرو گے تو ہم نے بھی چوڑیاں نہیں پہن رکھی۔ اب دوستو، جب اس آپریشن ٹرو پرومس 1 کو 1 سال مکمل ہو چکا ہے، ایران نے ایک مرتبہ پھر اسرائیل کو وہ لمحہ یاد دلایا۔ فارس نیوز ایجنسی جو ایرانی حکومت سے منسلک ہے، اس نے اس حملے کی فوٹیجز دوبارہ جاری کی۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ امریکہ اور ایران کے درمیان جوہری مذاکرات کے نئے دور سے قبل ایک واضح پیغام اور دھمکی ہے کہ ایران اپنے دشمنوں کو بھولتا نہیں۔ اور دوستو، اس واقعے کے چند ماہ بعد اکتوبر 2024 میں ایران نے آپریشن ٹرو پرومس 2 کا آغاز کیا۔ اس بار حملے زیادہ وسیع پیمانے پر ہوئے، جن میں تل ابیب، یروشلم اور کئی اسرائیلی شہر نشانے پر تھے۔ اس کے جواب میں اسرائیل نے بھی ایرانی علاقوں پر زبردست حملے کیے، جن میں 100 سے زائد لڑاکا طیاروں نے شرکت کی۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ اس نے ایران کے جوہری اور عسکری ٹھکانوں کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ جبکہ دوستو، ان تمام حملوں کے باوجود ایران نے نہ صرف اپنی دفاعی تیاریوں کو جاری رکھا، بلکہ اپنی طاقت کا مزید مظاہرہ بھی کیا۔ حال ہی میں ایران نے ایک اور زیر زمین میزائل سٹی کا انکشاف کیا، جس میں ایسے میزائل موجود ہیں جو مشرق وسطیٰ میں امریکی اڈوں اور اسرائیل کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جبکہ دوستو، ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے واضح الفاظ میں اپنے افسران سے یہ کہا ہے، ایران اپنی فوجی طاقت کو مزید مضبوط کرے گا اور مشرق وسطیٰ میں اپنے حمایتی گروپس کو بھی طاقتور بنائے گا۔ انہوں نے اپنی فوج کو قوم کی دیوار اور ہر حملے کے خلاف پناہ گاہ قرار دیا ہے۔ جبکہ دوستو، فلسطین کو لے کر ایران کی کیا پالیسی ہے؟ ایران کی خارجہ پالیسی کا سب سے اہم ستون ہے کہ فلسطین کی آزادی، یعنی اس کو آزاد کروانا۔ اور کہا جاتا ہے کہ ایران کے بانی رہنما آیت اللہ خمینی نے
फलस्तीनी कौम से ये वादा किया था कि वो उनका वतन उन्हें वापस दिलवाएंगे। इसी वादे को ईरान में सच्चा वादा यानी ट्रू प्रॉमिस कहा जाता है और इसी नज़रिए के तहत ईरान ने इसराइल पर किए जाने वाले हमलों को ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का नाम दिया। जबकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज 17 अप्रैल 2025 है और ये एक ख़ास खबर है कि अमेरिका अपने तकरीबन 2000 फौजियों में से आधी फौज को शाम से निकालने की तैयारी कर रहा है। इस वक्त अमेरिकी अफवाज शुमाल मशरकी शाम में मौजूद है, जहां वो कुर्दों की क़यादत में काम करने वाले सीरियन डेमोक्रेट फोर्सेस SDF के साथ मिलकर दाइश की वापसी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मगर अब रॉयटर्स और इस्राएली मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक वाशिंगटन ने अपनी फौजी मौजूदगी को मजबूत मगर महदूद बनाने का फैसला किया है और ये कमी अगले 2 महीनों में शुरू हो सकती है। इसकी पेश की इत्तला अमरीकी हुक्काम ने इसराइली दिफाई हुक्काम को भी दे दी है, जिससे इसराइल में तशवीश की लहर दौड़ गई है। इसराइल को ये खदशा है कि अगर अमेरिका अपनी अफवाज को कम करता है तो ये ताकत का खला तुर्की के लिए एक सुनहरी मौका बन जाएगा। तुर्की ना सिर्फ शाम के शुमाली इलाकों पर अपना असर बढ़ा सकता है, बल्कि इसराइल को ये अंदेशा भी है कि शाम उसके खिलाफ हमलों का लॉन्च पैड बन सकता है। अब दोस्तों, इसराइल का अंदेशा किस हद तक दुरुस्त है, इन बातों को आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मगर गुज़िश्ता महीनों में इसराइल ने कई मरतबा शाम में फ़िज़ाई हमले किए हैं ताकि ईरान नवाज फोर्सेस या तुर्की के हामी ग्रोह शाम में तवील अलमुद्दती फ़ौजी अड्डे ना बना सकें। ये बात भी काबिल गौर है कि एक तरफ अमेरिका शाम से फ़ौजी निकाल रहा है, दूसरी तरफ पूरे मगरबी एशिया में अपनी अस्करी ताकत बढ़ा रहा है। B-2 बॉम्बर्स, जदीद बहरी जंगी जहाज़ और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम हालिया दिनों में तैनात किए जा चुके हैं। इसका मकसद ईरान और यमन के हूसी बागियों को ताकत का वाज़ेह पैगाम देना है। जबकि इसी दौरान इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका से दरख्वास्त की है कि तुर्की को F-35 तैयारे ना दिए जाएं। नेतन्याहू ने खुद सदर ट्रंप से मुलाकात में ये मामला उठाया और कहा कि वो नहीं चाहते कि तुर्की शाम में इतना मजबूत हो कि इसराइल की सलामती को खतरा लाहक हो जाए। और दोस्तों, आपको ये बात भी मालूम होनी चाहिए कि इस बदलती सूरत हाल का एक और पहलू ये है कि कुर्दों ने हाल ही में दमिश्क हुकूमत के साथ यानी HTS के साथ एक मुआहदा किया है, जिसके तहत कुर्द इंतजामिया और सिक्योरिटी फोर्सेस को मरकजी शामी हुकूमत में ज़म किया जाए। ये मुआहदा भी अमरीकी मंजूरी से हुआ है, जो जाहिर करता है कि अमरीका एक नई हिकमत अमली पर काम कर रहा है, यानी खुद पीछे हटकर शाम को मकामी फरीकों के सुपुर्द कर रहा है। अब दोस्तों, इन सब में ट्रंप की पॉलिसी क्या है, ये सब सुनकर एक और बात जहन में आती है कि सदर ट्रंप ने अपनी पहली सदारत के दौरान भी शाम से तमाम अमरीकी फौज वापस बुलाने की बात की थी, लेकिन वो वादा मुकम्मल ना हो सका। अब ऐसा लगता है कि तारीख खुद को दोहरा रही है। जबकि दोस्तों, अमरीका और ईरान के दरमियान जौहरी मुआहदे पर मुज़ाकरात का दूसरा मरहला शुरू होने वाला है। पहला मरहला मुकम्मल हो चुका, मगर ईरान ने दुनिया को याद दिलाया कि हमारी पहुंच इसराइल तक है और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने कहा कि हमें अपनी रेड लाइन मालूम है और हम अपने मुल्क के मफाद पर कभी समझौता नहीं करेंगे। जबकि दोस्तों, फिलहाल ओमान की सालिस में ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक्ची और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मशरिक़ वुस्ता के नुमाइंदे स्टीव विक्टॉफ के दरमियान बातचीत जारी है। जबकि हाल ही में ईरान ने चीन और रूस के साथ भी मुश्तरका जंगी मशक़ें की, जो ओमान के खलीज में अंजाम दी गईं। इससे जाहिर होता है कि ईरान इलाकाई इत्तेहाद और अस्करी ताकत के मैदान में मजीद सरगर्म हो रहा है। जहां ईरान अमेरिका के साथ महदूद सतह पर बातचीत कर रहा है, वहीं इसराइल के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात का इम्कान ना होने के बराबर है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने यह वाज़ेह कर दिया है कि गज़ा में इसराइल के मज़ालिम नाकाबिले बर्दाश्त हैं। उन्होंने इसराइल को जराइम पेशा गिरोह करार दिया है। जबकि दोस्तों, ईरान की जानिब से ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस को 1 साल मुकम्मल होने पर जो पैगाम दिया गया, वो महज एक फ़ौजी कार्रवाई का जिक्र नहीं बल्कि एक सियासी पैगाम भी है। और ये पैगाम इसराइल, अमरीका और पूरी दुनिया के लिए है। अब दोस्तों, इसमें सवाल ये पैदा होता है कि क्या ईरान वाकई तीसरा हमला भी करेगा और क्या इसराइल इसका जवाब मज़ीद शिद्दत से देगा और फिर मशरिक़ वुस्ता का अमन किस तरफ जाएगा। आप दोस्तों की इस बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।